Assalamu alaikum, dear students. Hope you guys are doing fine. Well, it's our second online lecture for TEFL, teaching foreign language. A foreign language. The name of our subject is teaching English as foreign language. Well, today we are going to discuss about the GTM. GTM stands for Grammar Translation Method. So first of all, we will be taking on the introduction of the topic, and then we will be discussing the definition and history and principle, classroom techniques, objectives, and language usage and language skills. And later on in the last portion of the lecture we will be discussing about the advantage and disadvantages of this particular method of learning. Well, because the topic is very simple, so I would be just reading out the slides, and on important places I'll be giving some details about the topic. Otherwise, I'm very much sure that you guys can easily understand everything. Well, grammar translation method means a traditional technique of foreign language teaching based on explicit instruction in the grammatical analysis of the target language and translation of sentences from the native language into the target language and vice versa. This was given by the Random House unabridged dictionary. This is basically the definition from a dictionary. And now let us look over the definition given by Richard and Rogers 2002, and it is also cited in bar 2010. Well, grammar translation method is a way of studying a language that approaches the language first thought detailed analysis of its grammar rules, followed by the application of this knowledge through the task of translating sentences and text into and out of the target language. अच्छा, अब इसमें क्या होता है? Actually, you have already a language for you. That's why English is your second language. आपके पास एक ज़बान मौजूद है. So you cannot think in that. You cannot think into second language. दूसरी language में आप सोच नहीं सकते हो. तो क्या होता है कि इस मेथड के अंदर हम जो है अपनी पुरानी जो हमारी जो मादरी ज़बान है या हमारी नेशनल लैंग्वेज है या हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो दूसरी लैंग्वेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ व्हाट विच इज़ नोन एज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. दिस इज़ अ पर्टिकुलर टेक्निक यूज्ड ऑलमोस्ट everywhere in the world, not for English only, but for German and Latin and so many other languages. Well, just look at the definition. The grammar translation method is a method of foreign or second language teaching, which uses translation and grammar study as the main teaching and learning activities. Now, we are very much sure about the two things, that in this particular method translation is very important and the grammar is very important. So guys, let's not be confused कि ये किस तरीके पे काम करती है. There is only the focus is only on the translation and grammar. Well, look at the history. GTM is the oldest method of teaching. The grammar translation method is a foreign language teaching method derived from the classical, sometimes called traditional, method of teaching ग्रीक एंड लैटिन. बेसिकली ये ग्रीक एंड लैटिन को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ था हिस्ट्री के अंदर. एंड this method has been used from the classical times to translate classical languages like Latin and Greek. It has been called classical method as well. डियर स्टूडेंट्स, ये दुनिया में राइज रहा है और इस तरीके से जो है ना लोगों ने पुराने लिटरेचर को एक्सेस किया है, क्योंकि दुनिया पुराने लिटरेचर को समझना चाहती थी. दैट इज़ वाई इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू ट्रांसलेट द ओल्ड स्क्रिप्चर्स एंड जो भी हमारे पास जो भी लिटरेचर था उसको नई ज़बान. द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग. The grammar translation method is a foreign language teaching method derived from the classical, sometimes called traditional, method of teaching Greek and Latin. Basically ये Greek and Latin को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ था हिस्ट्री के अंदर. And
This method has been used from the classical times to translate classical languages like Latin and Greek. It has been called classical method as well. डियर स्टूडेंट्स, ये दुनिया में राइज रहा है और इस तरीके से जो है ना लोगों ने पुराने लिटरेचर को एक्सेस किया है, क्योंकि दुनिया पुराने लिटरेचर को समझना चाहती थी. दैट इज़ वाई इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू ट्रांसलेट द ओल्ड स्क्रिप्चर्स एंड जो भी हमारे पास जो भी लिटरेचर था उसको नई ज़बानों के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ी. तो देन ट्रांसलेशन जो है ना मतलब है कि एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक जो है ना अपना एक मकाम पकड़ गया और एक अलग जो है ना डिसिप्लिन बन गया in terms of language, second language acquisition. Well, what are the principles then? इस तरीके के असूल क्या हैं बच्चों? असूल ये है, द गोल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज स्टडी इज टू लर्न अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू रीड इट्स लिटरेचर. किसी ज़बान को, अगर किसी ज़बान के लिटरेचर को आपने पढ़ना है तो उस लिटरेचर को पढ़ने के लिए जो है वो इस तरीके को उस लिटरेचर को समझने के लिए जो है इस तरीक़ाकार को इख्तियार किया जाता है. एंड इन दिस वेरी way of learning or method of language acquisition, the focus is always on the grammar and vocabulary. Vocabulary is very much important and always emphasized by the teachers of this teaching method, this particular teaching method. Vocabulary selection is based solely on the reading text use, and words are taught through bilingual word list. बायलिंगुअल कौन से होते हैं? दो ज़बानों के अंदर जो है वो लफ्ज़ों की लिस्ट बनाई जाती है. मसलन एक टीचर अगर क्लास में अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है तो इस तरीक़ाकार से या इस तरीक़ा हाय तदरीस के ज़रिए वो क्या करता है, एक लफ्ज़ को इंग्लिश में लिखता है और दोबारा उसके सामने जो है वो उसके उर्दू मायने भी लिखता है ताकि उसके स्टूडेंट्स को आसानी हो. सो दैट इज़ वाई इट इज़ मेंशन इन योर स्लाइड के वर्ड्स आर टॉट थ्रू बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट, डिक्शनरी स्टडी एंड मेमोराइजेशन. वेल, इस तरीके के अंदर मेमोराइजेशन भी बहुत कराई जाती है. आई मीन, इफ़ यू रिमेंबर एंड इफ़ एनी ऑफ यू हैव एवर गॉन थ्रू अ प्राइमरी स्कूल सिस्टम, बचपन में जो आवाज़ें लगा लगा के जो है ना लफ्ज़ याद करवाए जा रहे होते प्राइमरी स्कूल्स के अंदर कि जी एक टीचर जो है वो बोर्ड के ऊपर लिखता है, फिर बच्चे जो है ना वन बाय वन आते हैं, उसको पढ़ते हैं और जनाब वो उसके मीनिंग्स भी वो ऐसे ऐसे करके, यानी दिस मीन्स दैट, दिस मीन दैट्स, ऐसा करके तो वो एक एक लफ्ज़ को मेमोराइज करवाया जाता है बाकायदा. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हिफ्ज़ करवाया जाता है. द सेंटेंस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस. वेल, अल्टीमेटली ये सिखाते क्या है इससे? सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कैसे बनता है. देन एक्यूरेसी, यस, इस तरीक़ाकार में एक्यूरेसी इज़ वेरी मच एम्फसाइज्ड इन दिस वे ऑफ टीचिंग कि यार जो भी आप बोलो 100% ठीक बोलो. वाइल इन अदर मेथड्स लाइक डायरेक्ट मेथड और जैसे एक कम्युनिटी के अंदर जो है ना किसी ने, लेट सपोज इफ़ यू आर लिविंग इन USA एंड यू डोंट नो अबाउट इंग्लिश, सो ऑन द वेरी फर्स्ट डेज, इन द वेरी बिगनिंग यू वुड बी कमिटिंग सम मिस्टेक्स. तो यहाँ पे ये वाला सिलसिला नहीं है. एक्यूरेसी इज़ एम्फसाइज्ड. आप जब भी बोलो आप बिल्कुल 100% एक्यूरेट बोलो. दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड. ग्रामर इज taught डिडक्टिवली. दिस इज दैट इज द सेंटेंस. Well, grammar is taught deductively, that is, students are given grammar rules and example and are told to memorize them and then asked to apply the rules to other examples. अब क्या होता है, क्लास में एक टीचर जो है वो जो ग्रामर रूल्स पढ़ा देता है, फिर उन्हीं ग्रामर रूल्स को वो इम्प्लीमेंट करता है कुछ सेंटेंसेस के ऊपर, एंड देन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड to apply the rules on other examples. And the seventh one is the students native language is the medium of instruction. अब इस तरीक़ाकार के अंदर क्या होता है कि जी आपकी जो भी मादरी ज़बान है आपने उस मादरी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश को सीखने की कोशिश करनी है.
ये तो हो गया बच्चों, ये जो इसके प्रिंसिपल्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासरूम टेक्निक्स, कि इस मेथड के अंदर क्लासरूम के टेक्निक्स क्या होते हैं। द रोल्स ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट्स, टीचर का अपना रोल है, स्टूडेंट का अपना रोल है। ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी पैसेज एज द मेन क्लासरूम एक्टिविटी। अब इस तरीका कार के अंदर जो क्लास में सबसे बड़ी एक्टिविटी हो रही होती है वो क्या होती है, ट्रांसलेशन। उस्ताद जो भी पढ़ता है उसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन करता चला जाता है, बच्चे उसको सीख रहे होते हैं। एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी, व्हाट वाज द मैसेज कमिंग आउट ऑफ दिस लेसन, ये समझाया जाता है कि वट एवर इज डिस्कस्ड इन द क्लास, डिड द स्टूडेंट गेट एनी आइडिया ऑफ दैट वेरी टेक्स्ट और दैट वेरी पार्ट ऑफ द लेसन। तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन को जो है ना बहुत जोर दिया जाता है। एंड देन वोकेबुलरी एक्टिविटी, फिर क्या होता है जी, टीचर जो है, टीचर इज सपोज टू राइट द डिफिकल्ट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट्स आर compelled to write it down on their notebooks. And then later on in the exercise portion, the grammar activity is suggested to the student, sometime parts of speech, sometime different tenses, and sometime different voices like active voice, passive voice, and narration rules, and so on and so forth. So first of all, the role of a teacher is that he will do everything by himself, and then he will translate the passages. And after the translation of the passages, the content will be discussed among the students, and vocabulary will also be given given a very serious importance. And then at the end of the lesson, grammar would be taken on. Okay ji. Well, what are the objective of this method, which is known as GTM or grammar translation method? बेटा इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि आप जो है वो जो भी ज़बान आप सीख रहे हो उस ज़बान का आप लिटरेचर पढ़ सकें, to be able to read literature written in the target language. And the second objective is to be able to translate from one language to another. आपके अंदर ability हो कि you should be able to translate one thing into another. And the third one is to develop reading and writing skill. Well, these are the main objectives of this method of teaching a second language, which is known as GTM or grammar translation method. To be able to read literature of the target language, to be able to translate it, and translate from one language to another language. And the third one is to be able to develop reading and writing skill. वेल, लैंग्वेज यूजेज। अच्छा, इस तरीका कार के अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है? पहले तो ये होती है कि क्लासेस जो हैं वो नेटिव लैंग्वेज में कंडक्ट की जाती हैं। लेट्स सपोज यू आर लिविंग इन चाइना एंड योर नेटिव लैंग्वेज इज चाइनीज, एंड you are tending to learn learn English language. So your class language or the medium of language in your class would be Chinese. And let's suppose if you are trying to learn English and you are using this method, so the medium of instruction in your classroom would be Urdu or some other language. Saraiki bhi ho sakti hai, Pashto bhi ho sakti hai. It is up to the environment in which your class is happening. Well, language 2 usage. The foreign language use is limited. Classroom will use foreign language for L2. देखें बेटा, अब यहाँ पे L2 जो है वो जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है वो उसका इस्तेमाल जो है इस तरीका कार में बहुत कम होता है, बिकॉज हमने सारी चीज़ों को, इंग्लिश को हमने उर्दू में पढ़ाना है। मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं, इंग्लिश को हमने उर्दू में पढ़ाना है क्योंकि हमारी उर्दू में समझने की कैपेसिटी ज़्यादा है। वी आर वेरी मच वी आर एट अ वेरी comfort level when we try to understand anything in Urdu, because Urdu is our national language. अच्छा, what are the language skills that we can learn from this method? Reading, writing, listening and speaking. Well,
in this particular method you improve your reading ability of the target language, and it also nourishes or polishes your writing skill, while listening skill is not given any importance or any weightage in this method of teaching, and speaking is also less important in this method of teaching. तो रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस रहता है बेटे, और लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर फोकस इस मेथड में इतना नहीं होता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ दिस मेथड. What are the benefits of this method? Actually ये इतना आम सा सब्जेक्ट है कि मैं इसको खींचता चला जा रहा हूँ. अदरवाइज ये जो बुलेट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यू गाइज हैव टू टेक ऑन वन बाय वन, और आपका ये एक पूरा सवाल बनेगा जो आगे एग्जाम में आएगा इंशाल्लाह. तो लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ दिस particular method of learning second language. The first language is maintained as the reference system in the learning of the second language. ये क्या कहता है? ये कहता है कि जी फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना उसको एक रेफरेंस सिस्टम के तौर पे यूज़ किया जाता है. लेट सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि जो है ना समोसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? what is the name of samosa in English? Let's suppose. तो मैंने अपनी बात को उर्दू में बयान कर दिया. आगे से आप मुझे डिक्शनरी देख के कहते हो कि सर देर इज़ नो अदर नेम फॉर समोसा. समोसा इज समोसा इन इंग्लिश टू. इंग्लिश में भी समोसा को समोसा ही कहते हैं. हाँ ये कर सकते हैं कि मुंह को अड़ा तिरछा कर सकते हैं. अदरवाइज देर इज़ नो एज सच डिश अवेलेबल इन द यूरोप, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज समोसा इन इंग्लिश. वेल इसी तरह के मुख्तलिफ चीज़ें जो भी रेफरेंस सिस्टम होता है वो इंग्लिश में दिया जाता है. क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में उर्दू में किए जाते हैं, उनका जवाब इंग्लिश में मिलता है. तो ये है रेफरेंस सिस्टम. इसका जो है वो क्या होता है जी फर्स्ट लैंग्वेज का होता है. कंपैरिजन बिटवीन टू लैंग्वेजेस हेल्प स्टूडेंट्स टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस मीनिंग. अब चूँकि इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान नहीं है और हम उर्दू जो है ना बोलने पर या उर्दू समझने पर हम मजबूर हैं, क्योंकि अब हमारे लाशऊर में ये ज़बान है, और ये वो ज़बान है जिसको समझने के लिए हमें डिक्शनरी की तरफ नहीं जाना पड़ता. तो ये जो है ना मतलब है दो ज़बानों के दरमियान में जो हम कंपैरिजन करते हैं तो ये जो है वो हमें सेंटेंस के मीनिंग में हेल्पफुल होता है. अब ये ऐसी कोई बात है बेटा कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते. अगर हम पैदा हुए होते किसी इंग्लिश माहौल के अंदर तो फिर तो हमारी नेचुरल एबिलिटी होती, लेकिन अब नहीं है. तो उसके लिए ये तरीका बेस्ट है. दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम. Systematic study of grammatical rules play an important role in fostering students' ability for reading and grammar. अच्छा, इस सिस्टम में चूंकि ग्रामर के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है तो इस वजह से ग्रामर की एबिलिटी जो है या रीडिंग की जो एबिलिटी है वो इस तरीके में बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है एज कम्पेयर टू अदर मेथड ऑफ टीचिंग. सो अ पर्सन हुज ग्रामर इज वेरी गुड, he is always given some importance, especially in those countries where English is not the national language or English is not the first language. The focus on understanding literary texts. अब novels हैं, different चीज़ें हैं, उनके ऊपर फोकस करने में जो है ना मदद मिलती है. बिकॉज ट्रांसलेशन मेथड के अंदर जो है वो चीज़ों को आप कॉग्निटिवली वो कर रहे होते हो. मसलन इफ़ यू आर रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट तो आपके दिमाग के अंदर मौजूद डिक्शनरी उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रही होती है, और आपकी कॉग्निटिव जो वो है कॉग्निटिव जो स्किल है वो उसको कोड करके आपको बता रही होती है, आपके दिमाग को बता रही होती है कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट. ठीक है जी. मेक्स फ्यू डिमांड्स ऑन टीचर्स although it often creates frustration for students. Yes, it is a bit challenging for the teachers, and it is always frustrating for the students. Yes, obviously it is always frustrating for the students because स्टूडेंट हैव टू मेक द डबल एफर्ट. एक तरीका तो ये है ना कि आप किसी बंदे को जाएं और उसे लेट सपोज
if you go to Afghanistan and you drop someone in Afghanistan and you say that you have to stay here for 3 months. After 3 months, well, he will get back. He will be able to speak good Pashto. And same is the case if you drop someone in England and you say that you have to survive here for 3 months and I'm gonna give you some money. So after spending 3 months over there, when he'll get back, because he do not have any other way for the survival, he would have learned English a lot. ठीक है, तो ये तो एक अलग बात है, बट लिविंग इन पाकिस्तान एंड स्पीकिंग इंग्लिश, it is always a difficult thing because we have an alternative, always an alternative at our serving point. हमेशा हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है, हमें ज़रूरत नहीं है हमारे आसपास के लोग उर्दू बोल सकते हैं, तो why we should bother about English and why we should keep ourselves in this difficulty. So this is the frustration for the student because they already have another language system available for them, which is their mother language or native language. Well, look at number 6. Translation is the easiest way of explaining meaning of words and phrases from one language into another. ये भी है, ट्रांसलेशन के ज़रिए से हम जो है ना फ्रेजेस के मानी और ये चीज़ें समझ सकते हैं जो आमतौर पे होता है. टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इजी टू कम्युनिकेट, इट डज नॉट नीड नेटिव लैंग्वेज. Teacher and students are easy to communicate. It does not need native language. Well, it does not need target language, I think. Wherever teacher feels that I am unable to discuss with my student, so he will carry on his speech in his native language. और जहाँ पे बच्चे को लगेगा कि यार मेरे पास जो है ना लफ्ज़ ख़त्म हो गए, so I should put myself on the other track, so he can change the track और वो अपनी ज़बान पे उर्दू में या जो भी उसकी ज़बान है उसमें बात कर सकता है. So these are the advantages of grammar translation method. Now last but not the least, disadvantages. क्या डिसएडवांटेजेस हैं बेटा? देखें, ओवर एम्फेसिस ऑन ट्रांसलेशन कैन नेवर एमेंसिपेट द लर्नर्स फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन द फर्स्ट लैंग्वेज. आप कभी आज़ाद नहीं हो सकते हो पहली लैंग्वेज से अगर आप ग्रामर के ऊपर, आप ट्रांसलेशन के ऊपर लगे रहे. और ट्रांसलेशन इज़ ऑलवेज ओवर एम्फेसाइज इन पाकिस्तान, स्पेशली इन स्कूल्स. तो जब तक आप जो है ना मतलब है कि अपनी पहली ज़बान से जान छुड़वाने में उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप ट्रांसलेशन पे बिलीव करते हो. तो दिस इज द फर्स्ट बिग डिसएडवांटेज दैट you cannot get the fluency in the target language. The second thing, the grammar translation put too much emphasis on reading and writing and neglects listening and speaking. While listening and speaking both are very important, I mean most of our communication is listening and speaking. हम ज़्यादातर तो बोलते या सुनते रहते हैं, पढ़ना या लिख के कम्युनिकेट करना दैट इज़ वेरी अनयूजुअल nowadays, especially in the age of technology. Only few people are writing something on the papers. Otherwise all of us, we are reading from different sources like internet or mobile devices and so on and so forth. तो इससे क्या होता है जी, हमारी जो असल चीज़ है वो है लिसनिंग और स्पीकिंग. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की वजह से ये सारी की सारी तबाह रहती है. लेट्स सपोज इफ अ पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान विजिट्स ऑस्ट्रेलिया, सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ही फेसेस ओवर देयर इज हिज लिसनिंग, क्योंकि वो बहुत स्पीड में बोलते हैं तो हम उसे नहीं समझ सकते. स्पोकन इज एज सेम इज द केस विद द स्पोकन स्किल. वेल, आगे चलते हैं. इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द टेक्स्ट आर मोस्टली टेकन फ्रॉम लिटरेरी वर्क्स. The language learned often doesn't meet the practical needs of the learners. अब इस चीज़ को देखें जी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि जी हम ज़्यादातर जो लफ्ज़ पढ़ते हैं या सीखते हैं वो हम लिटरेरी वर्क्स से देखते हैं. लेट्स सपोज यू लर्नड वोकैबुलरी फ्रॉम द शेक्सपियर्स नावल्स. अब शेक्सपियर के नावल के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल हुई है वो बहुत मतलब है कि आउटडेटेड ज़बान इस्तेमाल है हुई है, वो पुराने वक्तों की अंग्रेज़ी इस्तेमाल हुई है. लेट्स सपोज यू हैव गॉन थ्रू द नावल्स ऑफ जी बी शाह जी,
बर्नार्ड शॉ के नावल्स आपने पढ़े हुए हैं, अब उसकी ज़बान तो जो है ना वो बहुत टेक्निकल है और बहुत आउटडेटेड है। नाउ न्यू पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। इसी तरह आप जो है ना इसकी ज़बान को देख लें, आपको क्या कहते हैं डिफरेंट किस्म के, जैसे हार्डी है, यस, थॉमस हार्डी। अब उसको आप पढ़ोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू practically use those vocabulary that you have taken from literary works. So ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बनता है, और this is the big flaw of this method. Memorizing grammar rules and bilingual words list does not motivate student to actively communicate in the target language. अब grammar, let's suppose you have a situation, you have a person in front of you and he is a native speaker of English and you are supposed to talk to him. अब आप क्या करोगे? आप ग्रामर सोचोगे उस वक्त खड़े खड़े कि हाँ मैं इधर इज लगाऊं, एम लगाऊं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊं। सो ये जो मेमोराइजिंग वाला सिस्टम है, ये उस वक्त आप फर्स्ट आप अपनी ज़बान में सोचते हो, फिर अपनी ज़बान से सोच के दूसरी ज़बान के अंदर उसको ट्रांसलेट करते हो। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है इस सिस्टम का, और इस सॉरी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि एक आपकी एक मतलब एक एक्टिव एक सिचुएशन होती है कम्युनिकेट करने की, तो उसमें ये चीज़ें काम नहीं देती हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव फ्लुएंसी, इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग, then you won't be able to handle the situation of if you have any communication chance with the native person or any other who is who cannot speak in your language. Anyways, look at the fifth number, no scope for effective communication and very tedious for learner. बहुत स्लो तरीकाकार है, कोई कम्युनिकेशन का वो तरीकाकार मौजूद नहीं है। डायरेक्ट ट्रांसलेशन इज वाइडली रिगार्डेड एज एन इनएफिशिएंट वे ऑफ बिकमिंग फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज। तो ये मसाइल हैं। देखिए, डायरेक्ट ट्रांसलेशन इज वाइडली रिगार्डेड एज एन इनसफिशिएंट वे ऑफ बिकमिंग फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज। ट्रांसलेशन कभी भी किसी भी ज़बान के लिए जो है सीखने के लिए वो एक तरीकाकार साबित नहीं हो सकती है। दैट्स माई किड, ओवर फ्रॉम मी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। until, take care of yourself and the people in your surrounding. May Allah bless you all. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.